गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्मीना आलम, टीचर GHS नुमा गबरा। क्लास 10th की इंग्लिश टेक्स्ट बुक से आज हमने प्रोज सेक्शन से जो लेसन लिया है, द मर्चेंट ऑफ वीनस, अडॉप्टेड एंड अब्राइज फ्रॉम चार्ल्स लेम्स टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो स्टोरी इज अबाउट शेक्सपियर फेमस प्ले द मर्चेंट ऑफ वीनस, and the main characters in the story are एंटोनियो, बसानियो, पोर्शिया, शेलॉक। एंटोनियो कहानी का मरकजी किरदार हीरो वीनस का एक व्यापारी होता है। जो बसानियो होता है एंटोनियो का दोस्त। और जो पोर्शिया कहानी की हीरोइन बसोनिया की महबूबा। शेलॉक एक बदबहस सूदखोर यहूदी होता है। और उसके बाद ड्यूक ऑफ वीनस, वीनस का ड्यूक भी होता है, ब्लैरियो पोर्शिया का चचेरा भाई, एंड so many others. So, first of all, brief introduction of the story. The story is based on Shakespeare's famous play The Merchant of Venus. It is a story of two friends named Antonio and Bassanio. Bassanio has borrowed some money from Antonio. Bassanio needs this money to win the hand of his beloved named Portia, but Antonio has given this money to Bassanio by borrowing it from Shylock. Shylock is a rich and crafty Jew. Antonio has promised to pay back the money in three months. He signs a pledge that in case he failed to pay back the money, Shylock would be entitled to a pound of flesh from any part of near Antonio's hurt. Antonio is unable to pay back Shylock's money by the fixed day. The Jew brings a case against him in the Duke's court. In the court, Portia appears as a legal expert in disguise. She is able to save Antonio's life in a very intelligent manner. तो अब कहानी का मुख्तसर सा तारफ़। ये कहानी शेक्सपियर के मशहूर ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वीनस से माहूज़ है। ये एंटोनियो और बसानियो दो दोस्तों की कहानी है। बसानियो ने एंटोनियो से कुछ पैसे उधार लिए हैं। बसानियो को इन पैसों की अपनी महबूबा से शादी करने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन एंटोनियो ने ये पैसे बसानियो को शिलॉक नाम के एक अमीर और फरेबी यहूदी से उधार लेकर दिए हुए हैं। एंटोनियो ने 3 महीने में पैसे लौटाने का वादा किया होता है। वो एक अहदनामे पर दस्तखत करता है कि अगर वो पैसे लौटाने में नाकाम रहेगा तो शेलॉक को एंटोनियो के दिल के नज़दीक के किसी भी हिस्से के 1 पाउंड गोश्त लेने का हक होगा। एंटोनियो मुकर्रर दिन तक पैसे लौटाने में नाकाम रहता है। यहूदी उसके खिलाफ ड्यूक की अदालत में मुकदमा लेकर आता है। अदालत में पोर्शिया बेस बदल कर एक कानूनी माहिर के रूप में ज़ाहिर होती है। वो बहुत होशियारी से एंटोनियो की ज़िंदगी बचाने में कामयाब हो जाती है। तो नो आई विल स्टार्ट रीडिंग। Shylock the Jew, lived in Venice as usurer by profession, had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men, and particularly by Antonio, a young merchant of Venice. And Shylock as much hated Antonio because he used to lend money to people in distress and would never take any interest from money he lent. Therefore, there was great enmity between this covetous Jew and the genius merchant Antonio. Whenever these two met on the Rialto exchange, Antonio used to reproach Shylock for this had hard-hearted usury. The Jew would bear this with seeming patience while he secretly meditated revenge. Antonio's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia who lived in the city of Belmont. He wanted to travel to Belmont to propose to her but did not have the money he needed to make himself look as rich and important as her other suitors. So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. Antonio had at this time no ready money to give Bassanio because he had invested all this money in trade, his ships carrying rich cargoes and gone aboard, and they would take some time to get back to the port of Venice. But being very eager to provide this friend with the money he needed, he decided to borrow the sum of an old Jew called Shylock. Antonio and Bassanio went together to Shylock, and Antonio asked the Jew to lend him 3,000 ducats upon any interest he should require to be paid out of the merchandise contained in the ships at sea. तो नो आई विल ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ इनटू उर्दू। शेलॉक एक यहूदी वीनस में रहता है। पेशे से वो एक सूदखोर था।
उस आदमी ने ईसाई व्यापारियों को बहुत भारी सूद पर पैसा उधार दे देकर बहुत दौलत इकट्ठी कर ली थी। एक बहुत सख्त दिल का आदमी होने की वजह से जो पैसा उसने उधार दिया होता है उसकी वसूली वो इतने शिद्दत से करता था कि सभी अच्छे लोग इससे नफरत किया करते थे। खास तौर पर एंटोनियो जो वीनस का एक नौजवान व्यापारी था उससे शदीद नफरत करता था, और शीलॉक भी एंटोनियो से उतनी ही नफरत करता था, क्योंकि एंटोनियो तकलीफ ज़दा लोगों को पैसा उधार दिया करता था। वो उस पैसे के लिए कभी कोई सूद वसूल नहीं करता जो वो उधार दिया करता था। उस लिए लालची यहूदी और सही व्यापारी एंटोनियो के बीच बड़ी दुश्मनी रही थी। जब कभी एंटोनियो बाजार में शिलॉक से मिलता तो वो उसकी सहद दिली पर मबनी सूदखोरी का कारोबार के लिए उसकी मुखालफत किया करता था। वो यहूदी इन सब बातों के लिए ज़ाहिर सब्र से सह लिया जाया करता था, जबकि वो दिल ही दिल में बदला लेने का मंसूबा बनाता रहता था। एंटोनियो का नौजवान दोस्त बसानियो पोर्शिया की एक दौलतमंद और खूबसूरत खातून से प्यार करता था जो कि बलमाउंट नगर में रहती थी। वो उसके आगे अपने प्यार की पेशकश करने के लिए बेलमाउंट जाना चाहता, लेकिन उसके पास उतना पैसा नहीं था जिससे उसे की ज़रूरत जितनी उसकी ज़रूरत थी। खुद को इसके पोर्शिया के दूसरे जोड़ों को जितना ही दौलतमंद और अहम दिखाने के लिए उस लिए कि वो एंटोनियो के पास गया और उससे कहा कि वो उसे 3000 डिक्टस मीन यूरोप का एक कदीम सोने का सिक्के की रकम उधार दे। एंटोनियो हैड एट दैट टाइम नो रेडी मनी। उस वक्त एंटोनियो के पास बिसानियों के देने के लिए कुछ भी नगद पैसा नहीं था, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा व्यापार में लगाया हुआ था। दैट ही हैज़ इन्वेस्टेड ऑल हिज मनी इन द मर्चेंडाइज। माल से लदे इसके जहाज गैर ममालक में गए थे और उन्हें वीनस की बंदरगाह तक वापस आने में अभी कुछ वक्त लगता था, लेकिन अपने दोस्त को ज़रूरी पैसा जुटाने के लिए बहुत बेताब होने की वजह से उसने शिलॉक नाम के एक बूढ़े यहूदी से रकम उधार लेने का फैसला किया। एंटोनियो और बेसानियो इकट्ठे मिलकर शेलॉक के पास गए और एंटोनियो ने यहूदी से कहा कि उसे मन चाहे सूद की किसी भी शरह पर 3000 डिक्टस उधार दे दे, जिसकी अदायगी वो समुद्र में गए उसके जहाज़ में भरे माल में से की जाएगी। तो ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नो वर्ड मीनिंग्स इसके यूजर मीन सूद होर, एमेस्ट मीन ढेर लगाया, फॉर्चून बड़ी रकम, सेवरिटी शिद्दत, एनमिटी दुश्मनी, पॉवर्टियस लालची, एंड रिवेंज मीन्स बदला। ये थे इसी पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स। इंशाल्लाह आई होप यू गॉट इट। कल हम इसका नेक्स्ट पैरा देखेंगे। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।